Hello everyone, welcome to Math Top. Today we start a new topic, that is the trigonometric function. First we study some important formulas to solve the example related to the trigonometric functions, that is the allied angle formulae as well as the table of trigonometric values. मतलब sin theta, cos theta की values different angle पे क्या होती है. First we see these values and then we start actual trigonometric functions. Okay, then the trigonometric table for the different values of sin cos. the sin theta की वैल्यू 0 पे क्या होती है, पाई बाय 6 पे क्या होती है, दैट इज दिस 30 डिग्री वी हैव टू राइट इन रेडियन फॉर्म. ओके, देन साइन पाई बाय 6 की वैल्यू क्या है, 1/2. साइन पाई बाय 3 की क्या है, √3/2. साइन पाई बाय 4 की क्या होती है, 1/√2. एंड साइन पाई बाय 2 की क्या होती है, 1 है. देन सेम थिंग cos theta, tan theta की values for the different angles we are right here. We know all these values of sin, cos, tan, sec, cosec and cot theta value. Okay, the next is we have to know the allied angle formulas. मतलब sin 2 pi plus theta क्या है, sin pi minus theta क्या है, sin pi plus theta क्या है. How to find this? By using the formula of sin a plus b, sin a minus b, sin a plus b, sin a minus b. Applying this result we get the simplified term as here sin theta, here as minus sin theta, here as minus sin theta. Okay, or here we directly use this result. tan pi minus theta क्या है, tan pi plus theta क्या है, tan 2 pi minus theta क्या है, और cos pi minus theta, cos pi plus theta. Okay, we have to apply all these results as well as then to find the general solution. When it is required to find the general solution, we have to use this formula. When we find the general solution at the time, again we see these formulas. Okay, the next concept is that when here x axis, y axis, then here is origin, then in the first quadrant we know that x, y both are positive, then same thing form here we have to use for sin and cos values. Then in the first quadrant we know that sin is positive, cos is also positive. Okay, then in second quadrant sin is positive and cosec is positive, or you just remember ASTC form. A मतलब all positive, yes मतलब क्या है, sin and cosec is positive, because cosec मतलब क्या होता है, 1/sin term, as sin is positive cosec is also positive. Then T मतलब tan and cot is positive, remain all are negative. Here also sin cosec positive, remain all are negative. Here C मतलब cos and sec is positive, remain all are negative. Okay, just remember ASTC form. Okay, then in which quadrant sin is positive, in which quadrant tan is positive, or in which quadrant cos is positive. Just remember all these values. First in that, what is trigonometric equation? Trigonometric equation मतलब क्या होता है, an equation involving trigonometric function or functions is called trigonometric equation. मतलब sin की term, cos की term, tan की, cot की term इन्वॉल्व है, तो which is our trigonometric equation. Okay, then the next is the solution of trigonometric equation. The solution of trigonometric equation मतलब क्या होता है, when we solve a quadratic equation, when we consider a solution of quadratic equation, मतलब फॉर एग्जाम्पल x² - 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या सोल्यूशन है, +-2. वाई एक्स इज इक्वल टू +-2 इज अ सोल्यूशन, बिकॉज इफ यहाँ पे x की जगह अगर हमने 2 रख दिया तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है. मतलब लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड आता है. 2² 4 - 4 क्या आता है, 0, और -2 इज दियर, अगेन -2² क्या होता है, +4 ही होता है, तो 4 - 4 0, मतलब x इज इक्वल टू +-2 क्या है, सोल्यूशन है. मतलब और राइट हैंड वैल्यू इज इक्वल टू क्या होती है, लेफ्ट हैंड वैल्यू इज इक्वल टू क्या होती है, राइट हैंड वैल्यू होती है. और दिस x इज इक्वल टू +-2 सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, तो x इज इक्वल टू +-2 क्या है, सोल्यूशन है. तो सेम थिंग वी अप्लाई हियर, ए वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इन ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन विच सेटिस्फाई इक्वेशन is called a solution of a trigonometric equation. That is here if we consider one example, that is sin theta is equal to 1/2. तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, that is what is the value of theta for which sin is, the value of sin is 1/2. तो थीटा की कौन सी वैल्यू है for which sin की वैल्यू 1/2 होती है, तो थीटा की वैल्यू क्या है, π/6 है, जिसपे sin ऑफ π/6 क्या होता है, 1/2 होता है. तो हियर थीटा क्या होगा,
पाई बाय 6. दिस इज अ सोल्यूशन. सोल्यूशन मतलब क्या? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल सच दैट इट सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन. तो आवर लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू क्या मिलेगा? राइट हैंड. दैट इज साइन पाई बाय 6 क्या है? 1/n. तो साइन थीटा इज पाई बाय 6. दिस इज अ सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. ओके, दैट इज सेम थिंग. कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2. तो कॉस की वैल्यू कौन से एंगल पे 1/√2 है? तो वी नो दैट इट इज पाई बाय 4 पे क्या होती है? 1/√2 होती है. तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? पाई बाय 4. That is the solution of trigonometric equation. Then here to find a solution of trigonometric equation, there are two types of solution: general solution and principal solution. Okay. Then first one we see the principal solution. Then to find the principal solution, we have to find, that is here, to find a principal solution we have to find a solution which lies in the interval 0 to 2 pi. Okay, the values of theta which lies in between 0 to 2 pi. Principal solution, a solution here either alpha, x, theta, whatever the variable is there, a solution of alpha or a solution of theta of a trigonometric equation is called a principal solution if it lies between 0 to 2 pi. मतलब 0 के 2 pi के बीच में जो भी वैल्यू है वो क्या होगी? प्रिंसिपल सॉल्यूशन की वैल्यू होगी. ठीक है. देन हियर वी स्टडी दिस सम एग्जांपल्स. देन फर्स्ट वन एग्जांपल इज sin theta is equal to 1/2. Then here also when it is required to find a principal solution, you have to use the allied angle formulas. Okay, then sin theta is equal to 1/2. तो sin theta is equal to 1/2 है. we have to find a principal solution. तो इसकी जो वैल्यू होगी थीटा की वो 0 to 2 pi के बीच में होनी चाहिए. ठीक है. Then first upon, for which angle for which value of theta sin is 1/2, just we have studied, that is when theta is equal to pi by 6, then sin pi by 6 is 1/2. Okay, therefore sin of pi by 6 is 1/2. तो first value क्या मिली? pi by 6 मिली. Then second we apply the allied angle formula. Okay, then by allied angle formula, by using allied angle formula, तो क्या है allied angle formula? That is sin pi minus theta is a sin theta, and second allied angle formula is sin 2 pi plus theta is sin theta. Then we apply this two values, sin pi minus theta. तो sin फर्स्ट allied angle formula pi minus theta इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा होता है. ठीक है. तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है. तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है? यहाँ पे साइन पाई बाय 6 है. तो साइन पाई माइनस थीटा क्या है? पाई बाय 6 है. तो ये सिंप्लीफाइड टर्म क्या होगी? विच इज साइन 5 पाई बाय 6. ओके. तो साइन पाई बाय 6 इज इक्वल टू पाई बाय 6 इज इक्वल टू क्या मिली? साइन 5 पाई बाय 6. और दोनों की वैल्यू क्या है? 1/2 है. और अगेन नेक्स्ट अलाइड फॉर्मूला अगर हमने यूज किया तो क्या है? साइन 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा. जस्ट हियर वी आर अगेन यूज द नेक्स्ट इज साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन 2 पाई प्लस थीटा. ठीक है. तो साइन थीटा क्या है यहाँ पे? पाई बाय 6. साइन पाई बाय 6 इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई क्या होगी ये टर्म? साइन पाई बाय 6 इज इक्वल टू साइन 2 पाई प्लस पाई बाय 6. अगर इसे हमने सिंप्लीफाई किया तो क्या मिलेगा? साइन पाई बाय 6 इज इक्वल टू साइन 6 इंटू 2 12 प्लस पाई, दैट इज 13 पाई बाय 6. तो यहाँ पे क्या होगी? साइन पाई बाय 6 इज इक्वल टू साइन 13 पाई बाय 6. दोनों की वैल्यू क्या है? 1/2 पे. तो प्रिंसिपल वैल्यू पाई बाय 6, फर्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू पाई बाय 6, सेकंड 5 पाई बाय 6, देन नेक्स्ट क्या मिली? 13 पाई बाय 6. बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज विच लाइज बिटवीन 0 to 2 pi. तो इनमें से कौन सी वैल्यू प्रिंसिपल सोल्यूशन की वैल्यू होगी? जो 0 to 2 pi के बीच में. ठीक है. तो वी ऑब्जर्व दिस वेदर फर्स्ट पाई बाय 6 इज लाइज बिटवीन 0 to 2 pi. Yes, it lies between 0 to 2 pi. Then next is 5 pi by 6. Then it lies between also 5 pi by 6 also lies between 0 to 2 pi. But this next value 13 pi by 6 ये जो वैल्यू है वो क्या है? 6 to 12, that is it greater than 2 pi. That is it does not lie in between this interval 0 to 2 pi. तो ये क्या नहीं है? That is which is not a principal solution. तो कौन सा principal solution है? pi by 6 and 5 pi by 6. How to use the allied angle formula only which is applicable, that is this is not applicable. Okay,
साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो कौन से एंगल पे साइन इज 0? वी नो दैट 0 थीटा इज इक्वल टू 0 पे भी साइन क्या होता है? साइन 0 इज इक्वल टू 0। देन नेक्स्ट वी यूज द फॉर्मूला साइन पाई माइनस थीटा क्या है? साइन थीटा है बाय यूजिंग अलाइड एंगल फॉर्मूला। बाय यूजिंग अलाइड एंगल फॉर्मूला साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो यहाँ पे थीटा क्या है? 0 है। तो अगर हमने यहाँ पे थीटा पुटअप किया 0 तो क्या है? साइन पाई इज इक्वल टू साइन 0। तो क्या है? प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या मिला यहाँ पे? पाई। एंड फर्स्ट लोअर प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या है? फर्स्ट हमने जो पॉइंट आउट किया है मिनिमम प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या है? 0 है। सेकंड क्या मिला? पाई मिला। यहाँ पे भी अगर हमने नेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई किया साइन 2 पाई प्लस थीटा का, तो क्या होगा? इज इक्वल टू साइन थीटा, और थीटा क्या है? 0 है। तो यहाँ पे मिलेगा साइन 2 पाई इज इक्वल टू साइन थीटा साइन 0। ओके, थीटा क्या है यहाँ पे? 0 है। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग थीटा इज 0। तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल सोल्यूशन है? 2 पाई एंड 0। यहाँ पे क्या है? पाई, दैट इज 0 इज हियर। प्रिंसिपल सोल्यूशन की वैल्यू क्या मिली? 0 पाई एंड 2 पाई, बट 0 is included, pi is also included, but 2 pi is not included in the principal solution. Okay, therefore this principal solution of sin theta is equal to 0. कौन सा है? 0 and pi is principal solution. Okay, is a principal solution as 0 is included as well as 0 pi is less than equal strictly less than 2 pi. That is 0 is included, pi is also included, but this 2 pi is not included. Therefore 0 and pi is a principal solution. From these two example, it is observed that to find a principal solution you have to use one sin pi minus theta is equal to sin theta. Okay, not this theta, because here whatever we get the angle which is greater than 2 pi. Okay, therefore to find principal solution you have to use only this formula sin pi minus theta is equal to sin theta. That is nothing but here we have to find all the possible values of theta or alpha or x, whatever the variable which lies between 0 to 2 pi, that is greater than equal to 0 and less than 2 pi. We have to find all the possible values in between the interval 0 to 2. Find the principal solution of sin theta is equal to 1 upon root 2, and next one is given cos theta is equal to 1 up. Then we solve one by one. Okay, therefore first one is sin theta is equal to 1 upon root 2. So we find the angle, the value of theta for which sin is 1 upon root 2. तो कौन सा वैल्यू है? थीटा is equal to pi by 4. We know that is sin pi by 4 is equal to 1 upon root 2 होता है. ठीक है. Then by allied angle formula क्या है? साइन, यहाँ पे हम डायरेक्टली वन फॉर्मूला यूज करेंगे साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा. दैट इज फॉर प्रिंसिपल सोल्यूशन वी रिक्वायर द वैल्यू विच इज लेस देन 2 पाई. तो यहाँ पे ओनली साइन पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला एप्लीकेबल है, साइन 2 पाई प्लस थीटा का नहीं यूज करेंगे फॉर प्रिंसिपल सोल्यूशन के लिए. तो साइन पाई माइनस थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या है? पाई बाय 4 है. ठीक है, एंड यहाँ पे देयरफॉर वी सबस्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ थीटा साइन पाई माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू साइन पाई बाय 4. ओके, देन यार सिंप्लीफाइड टर्म क्या है? साइन 3 पाई बाय 4 इज इक्वल टू साइन पाई बाय 4, और दोनों की वैल्यू क्या मिलती है? 1 अपॉन रूट 2 होती है. ठीक है, तो प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या है? 3 पाई बाय 4 एंड ईयर पाई बाय 4. देयरफॉर वी ऑब्जर्व वेदर this 3 pi by 4 and pi by 4 is a principal solution or not. If it lies between 0 to 2 pi के बीच में लाए तो ये principal solution. तो फर्स्ट क्या है? pi by 4. It lies between 0 less than equal to pi by 4, strictly less than 2 pi, because 45 degrees less than 360. We know that this. Then next is 3 pi by 4 is also less than 2 pi. Next is 0 less than equal to 3 pi by 4 is strictly less than 2 pi. तो दोनों भी क्या है? प्रिंसिपल सोल्यूशन है. therefore pi by 4 and 3 pi by 4 is principal solution. Okay, in this way we find the principal solution. Cos theta is equal to 1 half. Therefore cos theta is equal to 1 half. Then we find the value of theta for which cos is 1 half. तो कौन से एंगल पे cos 1 half है? theta is equal to pi by 3. Okay, theta is pi by 3. Then cos pi by 3 is 1 half. Then by using allied angle formula, क्या है allied angle formula? cos theta के लिए cos 2 pi minus theta is equal to cos theta. Okay, then we have to apply this. Therefore by allied angle formula,
angle formula, what is cos 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा. तो थीटा क्या है यहाँ पे pi by 3. That is just we have find this principal solution, lower principal or the first principal solution is pi by 3. We substitute this cos 2 pi minus pi by 3. That is here nothing but we have to find the values of theta which lies between 0 less than equal to alpha strictly less than 2 pi. Okay, that is there are different number of values which lies between 0 to 2 pi. We have to find all these values which lies between 0 to 2 pi. Okay, therefore cos 2 pi minus pi by 3 is there. Then what we get this as is equal to क्या है cos pi by 3. Then simplify करेंगे तो cos 6 that is 5 pi by 3 is equal to cos pi by 3. अब दोनों की वैल्यू क्या है 1/2 is there. Okay, therefore whether these two values lies between 0 to 2 pi or not, if it lies between 0 to 2 pi then these two values are the principal solution. Okay, then just we observe this, that is 0 less than equal to pi by 3 strictly less than 2 pi. Okay, it lies between 0 to 2 pi. Then 5 pi by 3 is also lies between 2 pi 0 to 2 pi. Therefore pi by 3 and this 5 pi by 3 is a principal solution. Okay, both are these are the principal solution. After studying the principal solution we have to study the general solution. The values of principal solution lies only between 0 to 2 pi. General solution the values are 0 to more than 2 pi also. Whatever the values, or we are called also it as कॉमन सोल्यूशन भी कर सकते हैं. जनरल सोल्यूशन मीन्स हियर इज नो condition whatever the value of theta is lies, either it lies with 0 to 2 pi or greater than 2 pi also. Okay, that is known as the general solution. The solution of a trigonometric equation which is generalized by using its periodicity is called the general solution. Okay, then to find the general solution we have to use these formulas. Okay, then first of all when sin theta is equal to 0, theta is equal to n pi का formula use करना है. Cos theta is equal to 0 is given, so we have to use this. Next form is there. Here to solve the example we have to simplify this sin theta is equal to sin alpha की फॉर्म में लाना है. मतलब sin whatever the sin की वैल्यू गिवन है, sin theta is equal to suppose 1/2 है, तो we convert this value in the form of sin theta is equal to sin alpha. That is for what value of theta, the sin is 1/2, that is pi by 6. So then we write the sin pi by 6, that is sin theta is equal to sin pi by 6. Okay, then we get this form sin theta is equal to sin pi by 6. Then we get its general solution as theta is equal to n pi plus minus 1 raised to n power into alpha. तो यहाँ पे अल्फा की जगह क्या है pi by 6 है. मतलब sin theta is equal to whatever the value is given we have to write this value in the form of sin theta is equal to sin alpha के फॉर्म में लाना है. तो अल्फा की जगह क्या है pi by 6 है. Then we use this apply this formula, that is theta is equal to n pi plus minus 1 raised to n plus alpha. तो यहाँ पे अल्फा की जगह क्या लिखेंगे pi by 6 लिखेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट फॉर टू फाइंड ए जनरल solution whatever this sin theta cos theta we are given you have to simplify all this value in this form and then apply this फॉर्मूला टू फाइंड जनरल सोल्यूशन. तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा की फॉर्म में लाना है, कॉस थीटा को कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा की फॉर्म में लाना है, टैन थीटा इज इक्वल टू टैन अल्फा की फॉर्म में लाना है. एंड देन आफ्टर दैट वी यूज दिस साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा की फॉर्म में लाना है. देन वी यूज दिस फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर अल्फा के, टैन स्क्वायर थीटा को टैन स्क्वायर अल्फा के फॉर्म में लाना है. देन वी यूज दिस जनरल सोल्यूशन फॉर्मूला. ओके, देन हियर वी स्टडी दी वन एग्जांपल. कंसीडर वन एग्जांपल, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ sin theta is equal to root 3/2. Then what we are given sin theta is equal to root 3/2. तो ये sin theta को कौन सी फॉर्म में लाना है, sin theta is equal to sin alpha की फॉर्म में लाना है. तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा sin is root 3/2. कौन सी वैल्यू है थीटा की, फॉर दैट sin is root 3/2. तो sin pi by 3 is root 3/2. Okay, therefore sin theta is equal to sin of पाई बाई 3. ये साइन पाई बाई 3 मतलब क्या है रूट 3/2. तो ये रूट 3/2 को हमें साइन के फॉर्म में लिखना है. ओके, देन वी गेट साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा फॉर्म. ओके, देयरफॉर इट इज सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा के फॉर्म में. ओके, इफ साइन अल्फा थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है तो क्या है सोल्यूशन, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेस टू n पाई प्लस माइनस 1 रेस टू n इंटू अल्फा है. ओके, देयरफॉर यहाँ पे जनरल सोल्यूशन क्या होगा, देयरफॉर जनरल सोल्यूशन इज
फॉर दिस जनरल सोल्यूशन क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1/n इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है π/3। अगर हमें साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1/n अल्फा होता है। देन सेम थिंग हियर, साइन थीटा की साइन π/3, दैट इज दिस इज अगेन इन दिस फॉर्म। तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, एन पाई प्लस माइनस 1/n एंड अल्फा की जगह क्या होगा, π/3 होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट वन एग्जाम्पल इज देयर, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू 1/, ठीक है, यहाँ पे cos है ना, तो इसे भी cos के फॉर्म में लाना है, तो cos और π/4, तो ये कौन से फॉर्म में मिला, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा के फॉर्म में मिला। ओके, इफ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा है तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। ठीक है, तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ पे अल्फा की जगह क्या है, π/4 है, तो जनरल सोल्यूशन क्या होगा, देयरफॉर जनरल सोल्यूशन इज थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/4 होगा। ठीक है, विच इज द जनरल सोल्यूशन। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2, तो जनरल सोल्यूशन के लिए हमारे पास कौन से फॉर्मूलेज है, साइन थीटा का है, कॉस थीटा का है, एंड हियर साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा का है। ठीक है, तो साइन एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन साइन एंड कोसेक। ओके, देन वी नो दैट कोसेक थीटा एंड साइन थीटा का रिलेशन क्या होता है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा होता है। ठीक है, कोसेक मतलब क्या है, 1 साइन थीटा है, तो कोसेक थीटा की वैल्यू 2 है, तो साइन कोसेक मतलब क्या है, 1 साइन थीटा, दिस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 2, बिकॉज कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 इज गिवन, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ दिस। ओके, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट वी गेट, रेसिप्रोकल ऑफ दिस, दैट इज 1/2। फर्स्ट हम कोसेक थीटा को साइन थीटा के फॉर्म में लाएंगे, देन वी यूज द फॉर्मूला ऑफ दिस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो फॉर दैट सेम थिंग, साइन कौन से एंगल पे 1/2 होता है, तो थीटा इज इक्वल टू π/6 पे। ओके, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन π/6। ठीक है, तो which is in the form of sin theta is equal to sin अल्फा का फॉर्मूला। ठीक है, अगर sin थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है तो जनरल सोल्यूशन क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1/n अल्फा है, तो यहाँ पे जनरल सोल्यूशन क्या होगा, या अल्फा की जगह क्या है, π/6 है ना, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, जनरल सोल्यूशन n पाई प्लस माइनस 1/n एंड अल्फा की जगह क्या है, π/6, विच इज द जनरल सोल्यूशन। गिवन सेक थीटा प्लस √2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सेक थीटा प्लस √2 इज इक्वल टू 0 है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस टाइम √2। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सेक एंड कोसेक, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सेक थीटा एंड कॉस थीटा, तो सेक थीटा मतलब क्या होता है, 1/cos थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा एंड सेक थीटा की वैल्यू क्या है, माइनस √2 है, तो cos थीटा क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/√2, बिकॉज वी डोंट हैव द फॉर्मूला फॉर सेक थीटा, वी हैव द फॉर्मूला फॉर cos थीटा। क्या फॉर्मूला है cos का, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा का फॉर्मूला हमारे पास है। ठीक है, तो वी कन्वर्ट करेंगे सेक थीटा को cos थीटा के फॉर्म में, एंड देन वी हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला वेन एवर वी गेट दिस cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का फॉर्म मिलेगा, देन एंड देन वी अप्लाई दिस रिजल्ट। ओके, इज द जनरल सोल्यूशन। देन हियर व्हाट वी हैव द वैल्यू, cos थीटा इज इक्वल टू क्या है, माइनस 1/√2 है, तो cos थीटा कौन से एंगल पे 1/√2 है, that is theta is equal to π/4, then cos π/4 is 1/√2, बट यहाँ पे क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/√2, तो माइनस टाइम cos π/4 क्या होगा, माइनस 1/√2 होगा, बट हमें क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, दिस हैज पॉजिटिव टर्म एंड देन वी अप्लाई दिस रिजल्ट, मतलब हमें ये जो माइनस cos π/4 है ना, ये पॉजिटिव टर्म में चाहिए, देन वी नो दैट वन रिजल्ट cos, कौन सा रिजल्ट पता है, cos अलाइड एंगल फॉर्मूला बाय यूजिंग अलाइड एंगल फॉर्मूला cos पाई माइनस थीटा की जो वैल्यू है, ठीक है, वो क्या है, माइनस cos थीटा होती है। ठीक है, तो cos पाई माइनस थीटा क्या है, माइनस टाइम cos थीटा है, तो ये जो है ना cos माइनस टाइम π/4, इसे कन्वर्ट करेंगे, दैट इज cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। ओके, तो cos थीटा क्या है, π/4 है। ठीक है, पाई माइनस π/4 इज इक्वल टू माइनस टाइम cos
पाई बाय 4, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या है 1/√2 है। तो इसे है ना cos पाई माइनस पाई बाय 4 सिंप्लीफाई होकर क्या होगा, सिंप्लीफाई करेंगे 3 पाई बाय 4 इज इक्वल टू माइनस टाइम cos पाई बाय 4 इज इक्वल टू क्या है, सॉरी दिस इज -1/√2 बिकॉज cos माइनस पाई बाय 4 की क्या होती है -1/√2 -1/√2। देन दिस एज cos 3 पाई बाय 4 इज ऑल्सो -1/√2। तो एक कौन से फॉर्म में मिला, पॉजिटिव मीन्स cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा के फॉर्म में, ठीक है। तो cos दिस 3 पाई बाय 4 इज इक्वल टू क्या है -1/√2 है, ठीक है। therefore और cos theta this given value cos theta is equal to -1/√2, ये कैसे कन्वर्ट होगा, cos theta is equal to cos 3 पाई बाय 4 is equal to -1/√2 के फॉर्म में मिला, ठीक है। therefore which is in the form of cos theta is equal to cos अल्फा की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। देन cos theta is equal to cos अल्फा, तो थीटा की वैल्यू क्या होती है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होती है। ओके, देन अप्लाइंग दिस रिजल्ट हियर द जनरल सोल्यूशन क्या होगा, थीटा इज 3 पाई बाय 4, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 3 पाई बाय 4 इज आवर जनरल सोल्यूशन।